welcome to Knowledge Point. Now, today just you are watching the board where written class 10th topic trigonometry, introduction of trigonometry, basic level. As you know, students, a very important role of trigonometry in the field of measurement. You know, either height or distance. If you want to measure, then application of trigonometry is very important. The word trigonometry, trigonometry, three words. Tri plus gon plus metry. Three sides measurement. Okay? Tri means three, gon means sides, metry means measurement. So trigonometry is the branch of mathematics which deals with the measurement of three sides and angles of a triangle and problems allied with the triangle. So just students, it is the definition, simple definition. A large field of trigonometry that you will study in the next class after 10th. It is the first level where the trigonometry is studied by the students. Okay? So first of all, this is the definition. But you know, every time we have to find the ratio related to the side. You see, topic you know, what you have to be taught. Okay, so trigonometrical ratio, that means T ratio, it is in the short form, of an acute angle of a right triangle. This is the first part. Students, first we make the right triangle 90 degree. This is one of the side arm and this is another arm of a right triangle. Join it. Okay, ABC, angle ABC equal to 90 degree. So triangle ABC is a right triangle. Angle A and angle C are acute angle. Angle A and angle C are acute angles. So for these two, perpendicular and base are also the terms. What are the terms? Okay, terms related to side of right triangle, related to sides of
right triangle. Base perpendicular, hypotenuse. Okay, you see hypotenuse. This is hypotenuse. In this figure, hypotenuse is ऐसी. Hypotenuse क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल. सबसे पहले तो पहचानना है अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल. ओके, बेस adjacent side of acute angle. Acute angle and perpendicular. Opposite side of acute angle. So students, just it reminds. Now once again, Pythagoras theorem you have studied in the previous class. Pythagoras theorem. In which hypotenuse square, it is always in right triangle. Always use in applicable. Always applicable in right triangle. हमेशा राइट ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है. हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. शॉर्ट फॉर्म h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नाउ एलिमिनेटिंग a square, it becomes root p square plus b square. And likewise p square equal to h square minus b square. So p root h square minus b square. And b square equal to h square minus p square. Likewise b root h square minus p square. Now students, there are 6 trigonometrical ratios. There are 6 T ratios in term of acute angle. In term of acute angle in right triangle. Okay, suppose this is angle theta. So now sin theta. First you know the name of the 6 ratio. SINE full form, SIN short form. Cosine, COSINE short form cos. Tangent, small TANGENT short form tan. And cosecant, small form cosec. And secant, small form sec. And cotangent, small form cot. Here you see the use of this is very important in the trigonometry. Here sine means, you know, the
एंगल साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, ओके, साइन थीटा, साइड अपोजिट टू acute angle by side opposite to right angle, side opposite to right angle. What does this mean? This mean perpendicular by hypotenuse, P by H, cos theta, side adjacent to acute angle by side opposite to right angle, B by H, tan theta, here tan theta, okay, side opposite to acute angle by, okay, P by B, B side adjacent to acute angle, adjacent to acute angle, that means perpendicular by base. Now there are three more: sin, cos, tan, cosec. Just reciprocal of sin, reciprocal of sin, that means H by P. Sec, reciprocal of cos, that means H by B, and cot, reciprocal of tan. That means B by P. Students, just after this we have to give the relationship which comes in the field of trigonometry, that is called reciprocal relationship. Students, now just we have to know an important rule related to a ratio of right angle triangle. जैसे कि हम आपको एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखाएं। ये एक्यूट एंगल थीटा है, ये बी ए सी है। वो हमारे पास इसको बढ़ाने का, ठीक है, आगे और भी बढ़ा सकते हैं इसको। अब जरा देखिए, ये सारे तो राइट एंगल हैं, ए बी सी डी ई और एफ जी। यहाँ ई दीजिए और यहाँ एफ दीजिए, यहाँ जी दीजिए। अब जैसा कि क्या है रूल कि रेशियो जो है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो
does not depend upon size of angle. It only depends upon measure of angle. अब देखिए कि साइन थीटा लेना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर AC बाय हाइपोटेन्यूस BC, दिस ट्रायंगल के लिए, इन ट्रायंगल ABC। लेकिन इन ट्रायंगल BCF साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर DF बाय BF। जैसा कि आप देखते हैं सिमिलरिटी, 9th में भी सिमिलरिटी का कुछ टर्म्स आपने पढ़ा, एंगल, तो ये कॉमन है दोनों में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCF। BCF नहीं है, BDF है, BDF। तो आप देखिए क्या कि सिमिलर है, एंगल B कॉमन है और एक 90। ABC में BAC इक्वल टू एंगल BDF, ये 90 तो सिमिलर हुआ। ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDF। तो इसके आधार पर हमने क्या देखा कि साइड का रेशियो देखिए AC बाय BF, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC बाय AC बाय DF, ओके, AC बाय DF। और BC की जरूरत है तो BC बाय BF। अब हमारे पास देखिए AC बाय BC है, यहाँ ये हम ट्रांसफर कर देंगे तो AC बाय BC इक्वल टू DF बाय BF। तो इससे कंक्लूड होता है कि ये बड़ा हो छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं आता, वो मेजर ऑफ एंगल पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं हम, और रेसिप्रोकल रिलेशन जो बताया था, रेसिप्रोकल रिलेशन। जैसा कि हमने देखा कि साइन थीटा लिखा P बाय H और कॉसेक थीटा लिखा था H बाय P। तो साइन थीटा इंटू ये तो डॉट में दीजिए, डॉट प्रोडक्ट, कॉसेक थीटा क्या हो गया? P बाय, देखिए कैसे, P बाय H इंटू H बाय P 1। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, और साइन थीटा जरूरत पड़े तो 1 बाय कॉसेक थीटा। इसी तरह से सेक और कॉस एक दूसरे का सिमिलरली क्या होगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा क्या था? B बाय H और H बाय B 1, तो सेक थीटा हम लिख सकते 1 बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा लिख सकते 1 बाय सेक थीटा। अब सिमिलरली अब टेन कॉट बचा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू P बाय B इंटू B बाय P। तो आप कॉट थीटा को 1 बाय टेन थीटा लिख सकते और टेन थीटा को 1 बाय कॉट थीटा लिख सकते। अब क्या है कि स्पेशल टी रेशियो देखिए, जिसे आपको रिमेंबर रखना है, स्पेशल कोसेंट आप इसको लिख सकते हैं कोसेंट रूल
ऑफ टी रेशियो, ये याद रखिए, कोसेंट रूल। इसमें क्या है कि जब साइन और कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, P बाय एच और B बाय एच, ये आता है P बाय B, जो क्या होता है P बाय B यानी टेन थीटा। So just you have to remember tan theta equal to sin by cos और sin by cos equal to tan theta। आगे एक और cot के लिए रिलेशनशिप, cos theta by sin theta is equal to B by H P by H। ये B by P आया, ये cot theta, that means tan theta आया sin theta by cos theta and cot theta आया cos theta by sin theta। So students, just these all things is to be rememberable and everything should be make your result positive। Now students, हम अब पावर्स ऑफ टी रेशियो की बात करते हैं। जैसा कि देखिए साइन थीटा का अगर पावर है तो ये कभी भी साइन थीटा स्क्वायर नहीं होगा, तो क्या होगा, ये इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये करेक्ट है, ये करेक्ट, ओके। साइन थीटा पावर क्यूब, तो साइन क्यूब थीटा, नॉट साइन थीटा क्यूब इज इक्वल टू साइन, इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा क्यूब, यानी थीटा पर पावर नहीं होता है। इसी तरह सिमिलरली cos थीटा स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा क्यूब, cos क्यूब थीटा। सिमिलरली tan थीटा पावर स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा and tan theta cube, tan cube theta। Okay students, now just we have to know about the square rule of T ratio। हमें अब ये समझना है। देखिए जैसा कि आप जानते हो, जैसे पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये तो हमने जाना पाइथागोरस थ्योरम से। अब ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच स्क्वायर, देखिए एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर कट के 1 कैंसिल होगा और बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, 1 ये बी बाय एच होल स्क्वायर प्लस पी बाय एच होल स्क्वायर। परहैप्स हम जानते हैं कि बी बाय एच कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर 1। अभी हमने लिखा cos थीटा होल स्क्वायर होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1। ये देखिए स्क्वायर रूल, हमारे पास एक ये आया, एक फार्मूला क्या आया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसे एक आइडेंटिटी भी कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी।
सबसे पहले ये है क्या, तो आइडेंटिटी क्या होता है, एक इक्वेशन। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन एंड इफ it involves trigonometrical ratio which satisfy all the value of acute angle for both sides of the equation, then it is called trigonometrical आइडेंटिटी। ओके, और इस आइडेंटिटी से हम कई जो है और भी डिराइव्ड आइडेंटिटी प्राप्त कर सकते हैं। आइडेंटिटी क्या, डिराइव्ड आइडेंटिटी देखिए, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर आइए आगे, साइन थीटा रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पॉजिटिव वैल्यू ही पढ़ना है। फिर इसके आगे आइए, साइन थीटा रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी ए माइनस बी, और कॉस थीटा रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक पहली आइडेंटिटी मिली। अगेन हमारे पास में कुल 6 रेशियोज है, तो 2 मोर रेशियो से रिलेटेड और भी जो आइडेंटिटीज है वो हम आपके सामने रखते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी के जो सेकेंड पार्ट है उसमें जानेंगे साइन और कॉस के बाद टेन कॉट सेक कॉसेक का रिलेशन, सेक और टेन का रिलेशन और कॉसेक कॉट का। देखिए हमारे पास में क्या है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसमें हमने ऐसे डिवाइड किया, अब डिवाइड करता हूं बी से। एच बाई बी क्या होता है, एच बाई बी होता है सेक, बी बाई एच कॉस सेक, ये बी स्क्वायर से, ये भी बी स्क्वायर से, ये भी बी स्क्वायर से। यहां लिख दीजिए, वी हैव एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बी स्क्वायर। देखिए इसको हम लिख सकते हैं एच बाई बी होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं पी बाई बी का होल स्क्वायर, और इसको 1। एच बाई बी क्या होता है, सेक थीटा होल स्क्वायर
p बाई बी टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस वन, वो हमारे पास आया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी। ओके, सेकेंड आइडेंटिटी। अब स्टूडेंट्स देखिए क्या है कि इससे हम कई जो है डिराइव्ड फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। डिराइव्ड फॉर्मूला, इसमें आप लिखो सेक थीटा अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। इसमें लिखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसमें लिखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन। अब इसमें लिखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यह क्या बतलाता है? ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। दैट इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड वाइस वर्सा। ओके, उल्टा। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या हो जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सेक थीटा प्लस वन सेक थीटा माइनस वन, ये टेन स्क्वायर थीटा। आप इसको लिख सकते हैं टेन थीटा और रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और आप लिख सकते हैं टेन थीटा को एक दूसरे तरह से सेक थीटा प्लस वन और सेक थीटा माइनस वन। इसी तरह से स्टूडेंट्स कॉसेक कॉट का रिलेशन को ऑब्टेन करना है तो आप देख रहे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसे यहाँ पर मैंने डिवाइड किया था बी से, अब पी से करेंगे। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय पी स्क्वायर, देखिए एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। जैसा कि जानते हैं एच बाय पी और ये वन और ये बी बाय पी। तो आप देखिए एच बाय पी क्या होता है, तो एच बाय पी होता है कॉसेक थीटा होल स्क्वायर वन प्लस बी बाय पी होता है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का ही पहले होल स्क्वायर दीजिए। ओके, ऑल्सो देखिए आप यह ध्यान रखिए कि जब मैं लिख रहा था कॉट थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू कॉट इंटू थीटा, कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता। इसी तरह साइन थीटा भी साइन इंटू थीटा के इक्वल नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसे डिराइव्ड देखिए, डिराइव्ड कॉसेक थीटा आएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन, जिसे आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा
माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1 बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसके आगे देखिए, यहां से आएगा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट थीटा। अब इसको a प्लस बी ए माइनस बी, कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा रूट अंडर कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा। So students, just the identity related formulae have been described before you. Now trigonometrical value table, trigonometrical value table। आप देखिए ऐसे प्रॉब्लम्स जिनमें आपको 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के साथ दिया हुआ कॉस साइन टेन है, ऐसे प्रॉब्लम्स को आप जब बनाएंगे तो आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं। जैसे आपके पास में 6 रेशियो है, साइन कॉस टेन, टिप्स बता रहा। फिर आपके पास है कॉसेक, सेक, कॉट, और आपके पास जो थीटा है, क्योंकि साइन के बाद थीटा लगाएंगे, ये जो पॉइंट दे रहा हूं ये सब थीटा का है। थीटा आपके पास में देखिए, ये 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। तो आप देखिए इसका एकदम आसान तरीका, इजी मेथड। अभी मैं इजी मेथड बताता, फिर आपको ज्योमेट्रिकल मेथड से बताऊंगा। अभी इजी मेथड से बता रहा हूं, फिर आपको ज्योमेट्रिकल मेथड से बताऊंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे चुटकी बजाते आप सीख लेंगे। देखिए आपको 0 1 2 3 4 तो लिखने आता है, 0 1 2 3, ओके, 0 सॉरी, वेरी सॉरी, 0 1 2 3 4, ये तो आपको लिखने आता। अब सभी में 4 से डिवाइड कर दो। ओके स्टूडेंट्स, सो वेरी केयरफुली यू सी द ट्रिक। फिर आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो। ये 1, ये नहीं कैंसिल होगा, तो आप देखिए 3 का स्क्वायर रूट तो नहीं होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2। ये देखिए कैंसिल करके 1 का स्क्वायर रूट 1 बाय रूट 2। ये देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये 0, ये आएगा पूरा 0 जिसका स्क्वायर रूट 0। मैं इस तरह का एक टेबल बना देता जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, समझने में सेपरेटेड रहेगा। ठीक है, ओके। देखिए तो हमारे पास साइन के सारे वैल्यू आ गए, साइन के क्या आ गए, सारे वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये यहाँ लिखिए, ये दूसरे नंबर लास्ट है तो इसके दूसरे नंबर पर, जैसे ये 1, ये दूसरे नंबर पर है तो आप √3/2,
ये तीसरे नंबर पर यही आएगा, एंड फोर्थ नंबर पर 1/2 एंड फिफ्थ नंबर पर 0। अब जैसे 10 है तो हमने बताया था कि 10 होता है साइन बाय कॉस, स्पेशल रूल में, कोसेंट रूल में बताया था। आप 0/1 यानी 0। अब जब इसको डिवाइड करोगे इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 इसका रेसिप्रोकल 2/√3 यानी 1/√3, और ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड होगा तो सीधा 1, और इससे डिवाइड करोगे √3/2 को 2/1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 आ गया, और 1 में 0 से डिवाइड करोगे नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से जब भी डिवाइड करेंगे नॉट डिफाइंड आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ये हमारा 3 आ गया। अब कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। इसके रेसिप्रोकल 2, इसके रेसिप्रोकल √2, इसके रेसिप्रोकल 2/√3, इसके रेसिप्रोकल 1 के 1। सेक होते हैं कॉस के रेसिप्रोकल, 1 के 1 ही, ये 2/√3, ये √2/1 यानी √2, एंड 1/2 यानी 2/1 यानी 2, और 0 के रेसिप्रोकल तो आप जानते हो नॉट डिफाइंड। ये जरूर जानो, जो भी नहीं आज तक में जान रहे हो वो जानो कि 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 10 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, ये तो इन्फिनिटी साइन है, नॉट डिफाइंड। डज नॉट एग्जिस्ट भी कह सकते हो, √3। ओके, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। ओके, 1/∞ यानी 0, ये जानना है। इस तरह से हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू टेबल को एक इजी मेथड से बच्चों के सामने तक लाया। जस्ट वी हैव टू नो complementary angle of trigonometrical ratio. Complementary angles of T ratio। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, डेफिनेशन जानिए। कॉम्प्लीमेंट्री angles not angle, if sum of two angles is 90 degree, they are complementary angles। दैट मीन्स क्या है कि थीटा का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि देखिए इसी दोनों का सम देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा क्या आता है, 90 डिग्री। सो एक राइट ट्रायंगल के साथ हम जब चलते हैं तो ये अगर 90 डिग्री है और अगर ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए बी राइट एंगल है, देखिए अब हमारे पास में साइन थीटा मीन्स ये देखिए साइन थीटा पी ए बी देखिए है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि फॉर थीटा पी क्या है, ए बी क्या है, BC, और H क्या है, AC। फॉर 90 डिग्री माइनस थीटा देखिए P क्या है, BC, और B क्या है तो AB, और H क्या है तो AC। अब जैसे कि देखिए हम साइन थीटा क्या होता है, P/H, ठीक है।
तो थीटा पी बाय एच, देखिए थीटा के लिए पी ए बी बाय एच यानी ए सी। ओके, कॉस थीटा बी बाय एच, बी यानी बी सी बाय ए सी। टेन थीटा देखिए पी बाय बी यानी ए बी बाय बी सी। सेक थीटा देखिए एच बाय बी। ओके, पहले तो कॉसेक कर दीजिए, टेन के बाद कॉसेक आता है, कॉसेक एच बाय पी, तो कॉसेक एच बाय पी दैट मीन्स ए सी बाय ए बी। और सेक ये आता है एच बाय बी यानी ए सी बाय बी सी। और देखिए सेक थीटा के बाद कॉट थीटा यानी बी बाय पी, तो बी देखिए बी सी और बाय पी देखिए ए बी। अब हमारे पास है इधर बी। फिर देखिए अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमको देखना है कि 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए ए बी क्या है। 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए ए बी है जो क्या है 90 माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा ये परपेंडिकुलर बी सी बाय ए सी। तो देखिए बी सी बाय ए सी क्या है, ये देखिए ये रहा, मैच किया ना हमने। फिर देखिए cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा ए बी बाय ए सी। देखिए ए बी बाय ए सी कहाँ है, ये रहा। फिर देखिए tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा बी सी बाय ए बी। देखिए बी सी बाय ए बी कहाँ है, ये रहा। फिर आता है cosec 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, cosec का मतलब हो जाएगा h बाय पी, तो h ए सी बाय पी क्या है बी सी। देखिए ए सी बाय बी सी किधर है, ए सी बाय बी सी ये रहा। दैट मीन्स ये क्या है सेक थीटा, cosec हो गया। फिर सेक देखिए सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए सेक h बाय बी, h बाय बी, तो h बाय बी ए सी बाय ए बी। ए सी बाय ए बी देखिए कहां पर जाएगा, ए सी बाय ए बी cosec थीटा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये cosec थीटा से मैच करेगा। cot 90 माइनस थीटा देखिए ये क्या होगा, तो यहाँ cot जो होगा b बाय पी वही होगा यहाँ भी। अब b देखिए क्या है 90 माइनस थीटा के लिए ए बी और बाय p, तो 90 माइनस थीटा के लिए बी सी। ए बी बाय बी सी कहाँ पर है, ए बी बाय बी सी ये रहा, बचा हुआ ए बी बाय बी सी। तो आपने क्या देखा उसको आप निष्कर्ष निकालिए, कंक्लूजन। कंक्लूजन जो जगह है उसमें आप देखिए साइन थीटा, इसको क्या बदल दिया cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, यानी साइन का कंप्लीमेंट क्या हुआ, साइन का कंप्लीमेंट cos, cos का कंप्लीमेंट साइन, cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा। इससे निष्कर्ष पर पहुंचे। एंड देखिए tan 90 माइनस थीटा, सॉरी tan थीटा हो गया cot 90 माइनस थीटा, एंड cot थीटा हो गया tan 90 माइनस थीटा, एंड sec थीटा cosec 90 माइनस थीटा, एंड cosec थीटा हो जाएगा sec 90 डिग्री माइनस थीटा। So students, just in this part I have given all the basic concept related to trigonometry, very entertaining video. I hope
you must enjoy to see from start to end. Hope it will be very helpful to solve the all the types of trigonometrical problems. Thanks for watching my video.